Can you do district south or east की outsourcing start? और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जो हम दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक्चुअली कराची की एक और न्यू ऑपरेटिंग मॉडल की एसेसिटी में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 250 से 300 मीटर पर बजे के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स में और कॉन्ट्रैक्टर से लेके उनको जीपीएस अबे हट जा भाई तैयारी में तकरीबन 15-20 है उसमें देखने से कोई नहीं लगेगा जिन लोगों ने साल के अंदर जैसे कॉलेज और सेंटर जिसकी आउटसोर्सिंग में नहीं मॉडल Nasir Hussain Shah Sahab on the eve of inauguration ceremony for District Central, but it is everyone's responsibility to protect it. And CEO Mr. Liu Tao that he who wishes to secure Deputy Commissioner, distinguished guests and dear media friends, ladies and gentlemen, today is very hot, but we are very passionate because we come together to witness this inauguration. First of all, I would like to thank the state government and the SSWMB for their trust in granting us the district center project. And the witness of you all, we successfully launched the Kranji zone of Kranji district in December. We launched district Lakhana in January, and we launched Sarfiso zone of Kranji district in February. After carefully planning and preparation and the professional guidance of SSWMB and joint efforts of the team, especially by the strong support of Managing Director Mr. Zubair Ahmed China. Today, we grandly launched North Nazimbad zone of District Center, and also we together launched Model Colony and the Lanji zone, the remaining zone of District Kranji. Gansu Construction Investment Group is one of China's top 500 enterprises. Company's business scope covers new energy field and environment protection, technology development and innovation, real estate investment, machinery design, engineering and manufacturing, and other large projects. Company undertakes projects involving municipal and industrial solid waste collection, transportation and treatment, waste power generation, sewage treatment, wind and solar power generation. We take the solid waste management project as an opportunity to further bring more investment and advanced technology to Sindh province and create more local job opportunities to make our contribution to building a green Pakistan and benefiting the lives of the local people. District Center project is expected to daily collect nearly 2,400 tons garbage. Company has invested more than 700 sets of various types of equipment in District Center project. It will create more than 2,000 local job opportunities. Through an integrated waste collection and transportation system,
the closed-loop management from door-to-door collection to landfill transportation is implemented, and a clean culture is created through brand new equipment, advanced technology, and professional management. We believe that with the strong support of Sindh government and the professional guidance of Sindh Solid Waste Management Board, we will work hard to create a green and clean district center through professional management and efficient operation, which will satisfy the citizen of Kutch and the government of Sindh. Thank you so much. Ceremony in District Central. If we take a survey and ask to the people of District Central that what are the three main issues that are being faced by District Central, so I can assure you that solid waste management and the sanitary issues would be one of them always. There has been a population explosion in the district, and as per 2017 census, we are a population of around 3 million. And now we perceive that the population must have increased beyond that. The primary function of solid waste management is of the district municipal corporation, and I speak as an administrator DMC as well here, and I can see that we lacked a lot of capacity and capacity issues and the human resource issues. So that was unable for we were unable to control and manage the 2,000 ton of waste that we generate on daily basis in the district. The total machinery that is operational with DMC is around 90, and which has also lived up to its life, and it's hardly machinery which are not properly functional. The human resource available with DMC is around 1,000, out of which around 80% are beyond 50 years of age, so the level of efficiency is not very high. So we could see that DMC Central cannot on its own manage the solid waste, and I am really thankful to the Sindh government and Sindh Solid Waste Management Board that they have been helping us since August last year, where they are providing additional support through machineries, through diesel, and recently when we went to them and requested the Sindh Solid Waste Management Board to help us in managing it further, because the DMC does not have enough financial muscles to independently manage these resources, and they were very kind to take all 3 out of the 4 zones and provide POL for that as well. So for the past 6 months it's been Sindh government's help, due to which we have been able to manage the solid waste in District Central, and now today with the start of this door-to-door collection, I am pretty sure that the inhabitant of District Central will have a breath of fresh air, and inshallah with the help of Sindh government we shall make this district one of the prime districts in terms of cleanliness and greenliness, inshallah. Thank you, sir. Thank you so much for your support always. Thank you. Indeed, another pleasure that in last 1 year we have not only taken over the solid waste management systems for collection of the garbage, but we've also given the vision of proper disposal at the landfill site with designing and engineered landfill site, and also the treatment proposals, like we in the month of April witnessed 4 contracts which were given to international companies for converting the garbage into waste to energy proposals, out of which 3 are the electricity generation and 1 is the pyrolysis process where the gasification will be done, and 1 project which is now under consideration with the Angro Energy will be the generation of RDF fuel from the garbage. Sir, गार्बेज और म्यूनसिपल सर्विसेज जो हैं सबसे इम्पॉर्टेंट हैं लोकल गवर्नमेंट के सर्विसेज के लिए और जो हुकूमत की विजिबिलिटी के लिए। सर, आज की इस दिन के बाद जब हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को लॉन्च किया है और ये पहला जोन जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हर महीने हम एक और जोन स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, और बाय द एंड ऑफ जुलाई एंड मैक्सिमम बाय द मिड ऑफ अगस्त हम 100% डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को टेक ओवर कर लेंगे। सर, थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूँ सर, हमारा जो ये मॉडल है वो जो पहले जो मॉडल्स थे जो DMC चलते हैं उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है।
इस मॉडल के अंदर हम घर से कचरा उठा के किसी ओपन कचरा कुंडी में डंप नहीं करते। आप जो बाहर गाड़ियां देख रहे हैं इनको मिनी टिपर्स कहते हैं। ये मिनी टिपर्स घर से कचरा लेके फिर इसके साथ कॉम्पैक्टर्स में जाते हैं। आप देखेंगे भी बाहर तकरीबन एक स्टेशन PCTS मशीन्स हैं जिसको कॉम्पैक्टिंग मशीन कहते हैं, जो एक रिप्लेसमेंट है ओपन कचरा कुंडी की। इनकी कैपेसिटी तकरीबन 20 से 25 टन है और ये जो मिनी टिपर्स कचरा उसमें डालते हैं उसको कॉम्पैक्ट करके एक जगह रख देता है और जब ये भर जाता है तो हम इसको यहाँ से ले जाके लैंडफिल साइड पे डंप करते हैं, जहाँ आप तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आज की तारीख में एक जोन के अंदर सैकड़ों कचरा कुंडियाँ हैं इंशाल्लाह ताला। डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ नाज़िमाबाद से स्टार्ट करके हम पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर इनको ज़ीरो पे ले आएंगे सर। ये कचरा कुंडियाँ चाहे घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे में जो गार्बेज पे डंप होता है, ये ओवरऑल शहर के अंदर गंदगी का बायस और एक बहुत बुरा लुक देती हैं। तो जो एफर्ट्स हम सर शुरू से करते हैं वो एफर्ट्स हमें नज़र नहीं आते अगर ये कचरा कुंडियाँ हो। तो इस मॉडल के अंदर हमने जितने 5 डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट 60% जो कचरा है, कचरा कुंडियाँ, उनको हम ख़त्म कर चुके हैं आज की तारीख में। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जिससे 2 जोन हम ऑपरेशन कर चुके हैं, उसके अंदर ऑलमोस्ट 60% कचरा कुंडियाँ हम डिमोलिश कर चुके हैं। उसकी जगह अब सिर्फ ये मशीनें काम करती हैं। आज इसी दिन के अंदर हमारे पास जो एक साइड पे मशीनरी है वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की जो 2 रिमेनिंग जोन्स थे, जिसमें मॉडल कॉलोनी और लांडी जोन जिस पे भी ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, आज के इस इवेंट के बाद हम कल से फ्रंट एंड डोर टू डोर कलेक्शन का जो ऑपरेशन है अलॉन्ग विद द स्वीपिंग एंड मैकेनिकल स्वीपिंग के प्रोसेस के साथ हम लांडी और मॉडल कॉलोनी भी स्टार्ट करेंगे सर। तो आज के इवेंट की ना सिर्फ अहमियत डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए है, पर ये अहमियत हमारी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के लिए है। और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ जुलाई हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को जो कराची से शहर है उसको एंड टू एंड अपने सिस्टम के अंदर इंक्लूड कर देंगे सर। सर ये जितनी काविशें हैं ये तब तक पूरी नहीं होंगी जब तक हर इलाके से हर आदमी इस एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करेगा और हमें सपोर्ट नहीं करेगा। गार्बेज एक ऐसा एलिमेंट है जिसका लिंकेज हर घर से, हर गली से, हर दुकान और हर कमर्शियल एक्टिविटी से है। पिछले कई सालों से क्योंकि एक कंप्रीहेंसिव सिस्टम नहीं था तो बहुत सारे स्टेक होल्डर इस बीच में अपना काम करते रहे हैं। कुछ फॉर्मल स्टेक होल्डर हैं, कुछ इनफॉर्मल स्टेक होल्डर्स हैं और वो स्टेक होल्डर्स फ़ौरन से आज से या कल से जब उनकी रिप्लेसमेंट होगी तो शायद हमें वो स्पेस ना दें। आपको याद होगा जब सर हमने कोरंगी स्टार्ट किया तो हमें इमीडिएटली बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का फेस करना पड़ा, जिसमें जो हमारे फ्रंट लाइन लेबर है जो अभी पीछे खड़ी है, जिसको हम स्वीपिंग इंस्पेक्टर्स कहते हैं अपने, उनको काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ी घर घर से कचरा लेने में। और ये रेजिस्टेंस हम देखते हैं कि हमें शायद इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ज़्यादा हो। इसके लिए हमारी गुजारिश गवर्नमेंट से है कि हम इनके शाना बशाना खड़े हों, क्योंकि ये हमारे लिए काम कर रहे हैं। जब तक इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं, जब तक ये उस कॉन्फिडेंस के साथ घर घर में, गली में उस सोच के साथ नहीं जाएंगे, शायद हमें वो सर्विसेज ना मिल सकें। इसके लिए हर घर का बंदा जब तक हमें वो कॉन्फिडेंस और वो उस इनफॉर्मल सेक्टर को डिस्करेज नहीं करेगा, तब तक हम वो शायद अपनी रिजल्ट्स को अचीव ना कर सकें। इस फोरम से, इस मीडिया के सामने बैठ के मेरी गुजारिश हर इंसान, हर सिटीजन से है कि इस अमल को, हो सकता है हमारे अंदर कोताहियाँ हो, शुरू के मराहिल में हमें टीडिंग इश्यूज आएंगे परफॉर्मेंस के लेवल के ऊपर, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द सपोर्ट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एंड रेजिडेंट ऑफ द सिटी, विल होपफुली ओवरकम एवरीथिंग सर। और इसके लिए सर मेरी गुजारिश होगी कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के बेसिस के ऊपर हमें वो सपोर्ट और हमारे इन फ्रंट एंड प्लेयर्स को सपोर्ट मिल जाएगी तो हम कुछ शुक्रगुजार रहेंगे सर। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब नासिर हुसैन शाह साहब, वज़ीर बल्दियात, ज़ुबैर चन्ना साहब, MD सॉलिड वेस्ट, ताहा सलीम साहब, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के सीनियर रहनुमा सरदार ख़ान साहब, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जनरल सेक्रेटरी दिल मोहम्मद साहब, फ्रेंड्स फ्रॉम जैनजू, फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि हमारे शहर कराची का सबसे बड़ा मसला कचरा था और वो इतना संगीन हो गया था माजी में कि कचरे के हवाले से हमारे शहर की इंतज़ामिया का मजाक उड़ाया जाता था, कराची को कचराची कहा जाता था, मुख्तलिफ माफिया जिसके अंदर इन्वॉल्व थी। लेकिन आपने देखा
कि जिस तरह इस शहर की रौनकें बहाल करने के लिए इस शहर की बाकी माफियाज लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने अपना किरदार अदा किया, उसी तरीके से कराची शहर के कचरे के मसले को हल करने के लिए सिंध हुकूमत ने सिंध सॉलिड वेस्ट के ज़रिए बड़ा मुतहर्रिक अंदाज से काम किया। और पिछले एक साल में मैं समझता हूँ चाहे मीडिया हो चाहे सोसाइटी के लोग हों, वो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि कराची शहर के कचरे की सिचुएशन में बेहतरी आई। उन 5 अजला में जहाँ पर सिंध सॉलिड वेस्ट ऑपरेशनल थी, वहाँ पर इंतज़ामिया ने मुतहर्रिक अंदाज से काम किया। जो मेन शाहराहें थी, सड़कें थी, उसकी मैकेनिकल स्वीपिंग भी हुई, मैनुअल लेबर ने भी काम किया, उसको बेहतर बनाते हुए डोर टू डोर कलेक्शन भी स्टार्ट की गई। लेकिन हमें फिर भी तनकीद का सामना करना पड़ता था 2 अजला की वजह से, और वो थे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। और इसमें कुछ माजी की परेशानियां थी, दिक्कतें थी, जिसकी वजह से सॉलिड वेस्ट इन 2 अजला के अंदर ऑपरेशनल नहीं हो पाई। लेकिन मुझे खुशी होती है बताते हुए कि पिछले 1 साल में जहां सॉलिड वेस्ट ने अपनी जिम्मेदारी को एहसन तरीके से अंजाम दिया, उसी तरीके से इन 2 अजला के अंदर भी सिंध हुकूमत ने उसको मुकम्मल सपोर्ट प्रोवाइड की। और हमने कोरंगी के अंदर सॉलिड वेस्ट में ऑपरेशनल हुआ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर भी आज से सिंध सॉलिड वेस्ट जैनजू पार्टनर्स की मदद के साथ, इश्तराक के साथ हम अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुझे खुशी होती है बताते हुए कि इंशाअल्लाह कोरंगी के 4 जोन, 2 हमने पहले स्टार्ट कर लिए थे, 2 हम इंशाअल्लाह आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को भी हमने 4 जोन में डिवाइड किया है। आज से नाज़माबाद का जोन सिंध सॉलिड वेस्ट स्टार्ट करने जा रही है, और इंशाअल्लाह मैं पुरुमीद हूँ अगले 3 माह के अंदर पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है सिंध सॉलिड वेस्ट ऑपरेशनलाइज कर लेगी। और ये जो कचरे का सबसे बड़ा इशू डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का था, कराची का था, कोरंगी का था, उसको सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हल करने जा रही है। लेकिन जहां ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिंध हुकूमत लेकर आ रही है, सॉलिड वेस्ट को लेकर आ रही है, खर्चा कर रही है, हमें अपने शहरियों की मदद की ज़रूरत है। जिस तरह जुबैर चन्ना साहब बता रहे थे कि जब भी कोई अच्छा काम करने की कोशिश की जाती है तो जो माफिया, जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं, उसके अंदर दिक्कतें, रुकावटें क्रिएट करते हैं। जिस तरह कोरंगी में हमें सामना करना पड़ा कि जो बहादुर आपके, मैं तो कहता हूँ सिपाही हैं, जो कचरा उठाते हैं, इनको मारा पीटा गया वहाँ की माफिया ने। लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट के इन बहादुर कारकुनों का सिंध हुकूमत ने साथ दिया, पुलिस ने साथ दिया, हमने FIR कटाई, उन लोगों को गिरफ्तार किया। और मैं समझता हूँ अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर भी वो जो माफिया है जो कि कचरे से पैसे कमाती है, जो कि आपके घरों से कचरा उठा के सड़क पर फेंक के चले जाती है, बाद में हुकूमत को बदनाम करती है, वो एक बार फिर सरगर्म होगी। और इस माफिया को नाकाम करने के लिए जहां इन बहादुर लोगों को काम करना है, सॉलिड वेस्ट की इंतजामिया को काम करना है, सियासी कारकुनान को काम करना है, मैं समझता हूँ मीडिया के दोस्तों को और शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना है, ताकि हम लोगों को कायल कर सकें कि जो कचरा आपके घर से कोई शख्स उठा के किसी नाले में फेंकेगा, किसी सड़क पर फेंकेगा, उसका नुकसान इवेंचुअली आपको ही होगा, चूंकि वो आपकी सेवरेज को, आपके नालों को चोक करेगा, जो कि बारिश के दिनों में फिर हमारे लिए हंगामी सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मैं बताना चाहूँगा और रिकॉर्ड पर लाना चाहूँगा कि माजी में कराची के कचरे के हवाले से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ फिगर्स पेश करते थे। इस वक्त कराची शहर के अंदर जिन 5 अजला के अंदर सिंध सॉलिड वेस्ट काम कर रही थी, और फिर कोरंगी उसमें आप ऐड करें तो 8,500 टन कचरा यौमिया सिंध सॉलिड वेस्ट सड़कों से, गली मोहल्लों से, कचरा कुंडियों से उठा के लैंडफिल साइट पर लेके जा रही थी। 8,500 टन, और ये डॉक्यूमेंटेड है। और इंशाल्लाह जब सेंट्रल को भी आप ऑपरेशनलाइज कर देंगे तो ये 10,000 टन तक इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, काविश है सिंध सॉलिड वेस्ट की कि तमाम रिकॉर्ड अब डिजिटली हमारे पास अवेलेबल है। हम लोग कंप्यूटर पे देख सकते हैं कि लैंडफिल साइट पर कितनी गाड़ियां गई, उन्होंने कितना कचरा वहां पर डिपॉजिट किया, उसके बेसिस के ऊपर इन कंपनीज को फिर पेमेंट की जाती है। मैं बताना चाहूँगा कि चूंकि कचरा असासा है,
ये कचरा सोना है। इस कचरे को आप रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं बिजली पैदा करने के लिए। RDF जो कि सीमेंट फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। सिंध हुकूमत ने इसके हवाले से भी एक वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी फॉर्मुलेट की है। हमारी काबीना ने उसको मंजूर कर दी और सिंध पाकिस्तान का पहला सूबा इंशाल्लाह बनने जा रहा है जहां पर कचरे से बिजली पैदा की जाएगी। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए इस हवाले से 5 LOIs सिंध हुकूमत ने, सॉलिड वेस्ट ने, लोकल गवर्नमेंट ने, एनर्जी डिपार्टमेंट ने इशू कर दिए ताकि वो सस्ती बिजली पैदा हो सके और कराची के शहरियों को मिल सके और इसी तरीके से सीमेंट प्लांट में भी ये चीज़ इस्तेमाल हो सके। दूसरा जो बड़ा मसला था कराची शहर का वो ट्रांसपोर्ट था और मुझे खुशी होती है जिस जगह पर हम खड़े हैं इसी के बराबर से ऑरेंज लाइन को गुजरना है। सिंध हुकूमत ने ऑरेंज लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है। उसकी बसें इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज में कराची शहर की बंदरगाह कराची पोर्ट पर आ जाएंगी और इंशाल्लाह ऑरेंज लाइन जिसका नाम अब्दुल सत्तार ईदी लाइन रखा गया है इसको भी सिंध हुकूमत अगले चंद हफ्तों के अंदर इंशाल्लाह ऑपरेशनलाइज करने जा रही है। इसी तरीके से जो आम बसेज हैं जो सड़कों पर चलती हैं वो बहुत बड़ा मसला था कराची के शहरियों के लिए। सिंध हुकूमत ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पर उनके विजन की तकमील में अपने बजट में कराची शहर के लिए 240 नई बसेस की मंजूरी दी। उसकी प्रोक्योरमेंट हुई, टेंडरिंग हुई और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि वो 240 बसेस चाइना में तैयार हो चुकी हैं। उनमें से 119 बसेस चाइना की बंदरगाह से रवाना हो चुकी है और आइंदा चंद रोज में इंशाल्लाह कराची पोर्ट पर वो आ जाएंगे। उसके बाद उनको भी ऑपरेशनलाइज करके कराची के मुख्तलिफ 7 रूट्स के ऊपर सिंध हुकूमत चलाने जा रही है ताकि कराची के लोगों को ये रिलीफ प्रोवाइड की जा सके। और तीसरी चीज, ये मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं मीडिया को कि 1122 के हवाले से बड़ी बात की जाती थी कि इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस हमारे शहर में, हमारे सूबे में नहीं है। 288 नई एम्बुलेंसेस सिंध हुकूमत ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। वो इंशाल्लाह उसका पहला बैच इस महीने के आखिर में डिलीवर कर दिया जाएगा और इंशाल्लाह 1122 भी आइंदा चंद हफ्तों में कराची शहर के अंदर और सिंध के बाकी अजला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत चलाने जा रही है। ये वो कमिटमेंट है मेरे पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, ये वो कमिटमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की जो कि बार बार सिंध हुकूमत को पुश करते हैं कि आवाम की फलाह व बहबूद के लिए, आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए जो कुछ भी किया जा सके वो किया जाए। और मुझे खुशी होती है कि उसी काम के ऊपर नासिर शाह साहब भी कार फरमा है, उसी काम के ऊपर सईद गनी साहब भी कार फरमा है, उसी काम के ऊपर मैं भी कार फरमा हूँ, शर्जील मेमन साहब भी कार फरमा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की काबीना का एक एक वजीर, मुशीर, मुआवने खुसूसी कार फरमा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक जियाला कार फरमा है ताकि हकीकी खिदमत इस सूबे की आवाम की जा सके, इस शहर और सिंध के बाकी अजला की इंशाल्लाह की जा सके। इसी तरीके से लोगों की खिदमत जारी और सारी रहेगी। इसी तरीके से उस खिदमत की तफसीलात आपके साथ शेयर करते रहेंगे और मिलके इस शहर को बेहतर बनाएंगे, इस सूबे को बेहतर बनाएंगे, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को बेहतर बनाएंगे। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। काबिल एहतराम मुर्ज़ा वहाब साहब, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, मोहतरम ज़ुबैर साहब, ताहा सलीम साहब, दीन मोहम्मद साहब, हमारे शेख खान साहब और स्टेज पे बैठे हुए और मेरे सामने मौजूद तमाम हाजरीन महफिल, प्रेस के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का एक मेन जोन जो है वहाँ पर ये शुरू किया गया है सॉलिड वेस्ट की तरफ से काम, और दीगर जो डिस्ट्रिक्ट हैं कराची के जिसमें कोरंगी पे भी आज मुकम्मल तौर पर काम शुरू कर दिया गया और सेंट्रल के जो दीगर जोन हैं वहाँ पे इंशाल्लाह जुलाई के एंड तक ये प्रॉपर वर्किंग शुरू हो जाएगी। तो जो पूरे कराची का जो कचरा है वो अब साफ होगा और जो विजन है
मेरे चेयरमैन साहब का, एक तरक्की का, एक बेहतरी का, उसी की तकमील के लिए सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब और हम सब, जिस पे मैं भी, मुर्तज़ा साहब, सईद गनी, हमारे दीगर जो सब दोस्त हैं, इसमें दिन रात काम कर रहे हैं ताकि पूरे सूबे में बेहतरी लाई जा सके। तो जिस तरह बताया गया कि कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं, प्रॉपर लोगों को तंग किया जाता है, और जो हमारे ये मुजाहिदीन सॉलिड वेस्ट वाले और इनके साथ दीगर जो म्यूनसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब काम करते हैं और इनको कोई रुकावटें आती हैं, तो ये आप परेशान ना हो, आपके साथ हम सब हैं। यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिंध पुलिस और हमारे रेंजर्स के जवान भी आपके साथ हैं। तो कोई भी कहीं भी ये ना सोचे कि वो इनके किसी काम में कोई रुकावट डालेगा, और अगर कहीं भी इस तरह की पहले शिकायत आई हैं तो उन सब के साथ बहुत सख्त एक्शन लिया गया है ताकि दूसरों को भी ये सबक हो। तो मैं दोबारा इस वजह से ये दोहरा रहा हूँ कि ये शिकायत आती हैं तो इस दफ़ा मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन भी है और लॉज भी बनाए गए हैं ताकि अगर कोई हिंड्रेंस करे या कोई परेशान करे तो उसके साथ सख्त तरीके से पेश आया जाए। और जो हमारे इनके जीएम हैं, हेड हैं इस कंपनी के, ताओ लू साहब, वो भी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है उनकी जहाँ जहाँ इनकी कंपनी ने काम किया है। तो ये सारी बेहतरी लाएंगे। आपको काफ़ी तफसीलात मुर्तज़ा साहब ने बताई कि जो हमारे तरक्याती जो प्रोग्राम हैं, जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए, यहाँ की ट्रांसपोर्ट के लिए, यहाँ के दीगर जो तरक्की है, डेवलपमेंट है, उसमें जो हमारा बजट गुजरा है उसमें भी थी, और अब भी जो आने वाला बजट है उसमें बहुत सारी स्कीमें रखी गई हैं ताकि यहाँ पे तरक्की का जो सफ़र है, जो विज़न है मेरे चेयरमैन साहब का, उस पर अमल कराया जा सके। सारे प्रेस के दोस्त बैठे हैं। आपको याद होगा कि जब हम कोरंगी का स्टार्ट किया था और उसके बाद हम लोग लॉन्ग मार्च के लिए निकले थे, तो हमने कहा था कि ये लॉन्ग मार्च जो चेयरमैन की सरबराही में है, ये वहाँ का कचरा साफ करने के लिए है, जो सियासी कचरा भरा हुआ था। तो उसमें तो कामयाबी हो गई, वो कचरे से तो जान छूट गई। अब यहाँ का जो कचरा है उसका सेंट्रल से भी सफाया आज शुरू हो जाएगा, तो उसमें सब चीज़ें साथ साथ चलेंगी तो मुल्क की तरक्की भी होगी, सूबे की तरक्की होगी, शहर की तरक्की होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। सिंध जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी देखिए, ये अनोखे लाडले थे और वो ये समझते हैं कि अगर वो हुकूमत में है तो सब ठीक है, अगर वो नहीं है तो सब खराब है। और इसी तनाज़र में वो आला अदालतों को, हमारे मुक़्तदर इदारों को, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कल, उन्होंने बहुत ज़्यादा बात नहीं की बल्कि खान साहब ने बकवास की है। और हमें अपने इदारों का, अपनी अदालतों का और जो सियासी कायदीन है उनके बहुत ज़्यादा इज्जत है। और मैं आपके तवस्सुत से खान साहब से ये कहूँगा कि वो इस तरह की बातें ना करें जो मुल्क को मज़ीद इंतशार की तरफ ले जाएं। हमारी अदालतें, हमारे इदारे, हमारे सियासी रहनुमा इंतहाई काबिल इज़्ज़त हैं। खान साहब ये समझते हैं कि वो अगर वज़ीर आज़म है तो सब ठीक है, अगर वो नहीं है तो सब गलत है। और आपने देखा होगा, क्योंकि ये चीज़ें मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, कि जब ये मूव इनके खिलाफ चली थी, ये तो 2019 से शुरू है
और उस वक्त तो ये कहते थे कि कोई मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के दिखाए। और जब आपको याद होगा चेयरमैन साहब ने ये मार्च शुरू किया था और उससे पहले भी उन्होंने हमेशा बात की कि इस मौजूदा जो उस वक्त वो वफाकी नाअहल हुकूमत थी पीटीआई की, उसको आईनी तरीके से हटाया जाएगा। और वो एक ही तरीका था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। और जब इन्होंने देख लिया कि अब वो उसमें कोई गुंजाइश नहीं, तो फिर ये नया ड्रामा शुरू कर दिया। पहले तो वो गुन गाते थे उन्हीं इदारों के, उन्हीं ममालिक के, मिसालें दिया करते थे। और जब वो नजर आ गया कि अब इनका धड़न तख्ता है, तो अब उनको सब वो बुरे लगने लग गए। और अब वो एक इनके और भी जितने भी लोग हैं वो बड़ी जलाओ घेराव की बातें करते हैं। और हम तो इन्हें कहते हैं कि वो अपने उन यूथियों को इस्तेमाल करें ना, वहां पे जिनके खिलाफ यहाँ बोलते हैं उन्हीं ममालिक में इस्तेमाल करें ना, तो थोड़ा सा अंदाजा भी हो जाए, थोड़ा उनका गुस्सा भी कम हो जाए। बजाय कि ये गुस्सा अपने मुल्क में निकाल रहे हैं, अपनी अदालतों पे, अपने मुक्तदर इदारों पे और दीगर शरीफ लोगों पे, तो ये गुस्सा वहां पे निकालें तो इनका पता चल जाए। वहां तो इनके लोगों की नेशनलिटीज हैं, वहां पे ये कोई बात जो है उसके खिलाफ नहीं करते। तो आपने जो क्वेश्चन किया उसकी मैं दोबारा आपके तवस्सुत से सबसे कहता हूं कि होश के नाखून लें और अपने मुल्क को मजबूत करें। ये ना हो कि हम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा शाह साहब, ये बता दें कि आप इस वक्त सेंट्रल में खड़े हैं, तो सेंट्रल जो है वो कराची का सबसे बड़ा ज़िला है, तो आपके इत्तेहादी आज आपके साथ नहीं है। हालांकि अब तो तकरीबन बड़ी मोहब्बतें आप दोनों के दरमियान हो गई हैं। तो अभी जिक्र किया कि सेंट्रल से भी गंद को साफ करेंगे, तो ये गंद कौन सी गंद है? कोई पीटीआई वालों की गंद है या एमक्यूएम वालों की तरफ आपका इशारा है? क्योंकि सेंट्रल तो उन्हीं के पास रहा है और लोगों को शिकायतें उन्हीं से रही हैं। देखिए, आप मैंने तनकीद करते रहे। मैंने आपसे वजाहत की कि सियासी गंद चेयरमैन साहब के मार्च की वजह से खत्म हुआ। यहाँ का जो कचरा है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सिंध हुकूमत की जो काविशें हैं उससे खत्म होगा और लोगों को यहाँ पे रिलीफ मिलेगा, घरों से कलेक्शन होगी और फिर वो लैंडफिल साइट पर जाएगी। और फिर जिस तरह दीगर चीज़ें भी बताई गई कि वेस्ट टू एनर्जी के प्रोजेक्ट भी हैं, तो आप इन चीज़ों को गड़बड़ ना करें। और जो हमारे इत्तेहादी हैं वो हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, हमने उन्हें भी इनवाइट किया था, तो किसी वजह से वो यहाँ पे शामिल नहीं हुए। और हम सब ने मिलकर काम करना है, सियासी पार्टीज हो, सोशल वर्कर्स हो या आम लोग, जब तक सब मिलकर हम काम नहीं करेंगे तो बेहतरी नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से अभी बताया गया कि मॉडल कॉलोनी की तरह, कोरंगी की तरह वही मॉडल सेंट्रल में भी लाया जाएगा, तो जब से ये सऊदाबाद वाली रोड बनी है तो उस पर जब भी कचरा होता था उस हवाले से मीडिया ने काफ़ी काम किया है। वहाँ के लोगों से बात होती रहती है। इलाका मकीन वहाँ के ये कहते हैं कि जब से चीनी कंपनी को ठेका दिया है उससे मजीद सूरत हाल ख़राब हुई है। तो क्या उसी तरीके का सिस्टम अब सेंट्रल में भी लाया जाए? दूसरा, अगर आप ये कहते हैं जैसे मुर्तज़ा वहाब साहब और चन्ना साहब ने कहा कि जो माफियाज हैं उनको कचरा ना उठाने दें, उसका अलग ऐलान कर दें ना कि आवाम से अपील कर दें कि वो किसी को भी कचरा ना दे, डेली बेसिस पे उनके पास सरकारी गाड़ी आया करें। जी बिल्कुल, जहाँ जहाँ काम शुरू हुआ है वहाँ पे ऐसा ही है। और आपकी बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं भी आपको आज सही इन्होंने ट्रीट नहीं किया। जहाँ काम हो रहा है वहाँ पे बेहतरी आई है और वहाँ के लोग ये कहते हैं। जो जिस सड़क की मिसाल आपने दी, मे भी वहाँ पे काम शुरू ना हुआ हो। और एक और बात भी, आज हमारे दोस्त बैठे हैं इंडस्ट्रियल जोन के, तो इनका भी जो एरिया है यहाँ का सेंट्रल का, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो इनके साथ भी MOU हुआ है और सेक्रेटरी नजम साहब भी आए हैं और तो बेहतरी आई है और मजीद बेहतरी के ख्वाह हैं। जहां पे अगर कोई शिकायत है तो उसको जरूर दूर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू, मेहरबानी। शाह साहब, जैसे गर्मियां आती हैं, पानी की किल्लत एक दफ़ा फिर सर उठाती है कराची शहर में। अब फिर एक दफ़ा पानी की किल्लत का सामना है। गुज़िश्ता रोज़ जो इजलास हुआ वज़ीर आला हाउस में, उसमें भी ब्रीफ किया गया कि शहर को जो किल्लत है
15 साल हो गए सर आपकी हुकूमत है शहर में। जी जी, क्या किया आपने? देखिए उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किए गए हैं ताकि बेहतरी आए। सीएम साहब ने कोई 3 दिनों के अंदर दो दफा ये मीटिंग की। आज भी यहाँ से हम सीधा वहीं जा रहे हैं, वाटर बोर्ड की वहाँ पे हमारी मीटिंग है। तो इसी की बेहतरी के लिए हम लोग कोशिश हैं कि इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जाए और पानी के साथ साथ हीट वेव की भी कहा गया है कि हो रही है। तो इसके लिए सेक्रेटरी साहब से सुबह भी मैंने कहा था कि पूरे सूबे में जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कह दिया जाए कि हर जगह पे वो एहतमाम किया जाए। और जिस तरह एडमिनिस्ट्रेटर्स कराची भी यहाँ मौजूद हैं, मुख्तलिफ DMCs के एडमिनिस्ट्रेटर साहिबान भी यहाँ पे हैं, तो वो भी अपना अपना इंतज़ाम रखें ताकि शहरियों को किसी मुश्किलात का सामना ना हो। थैंक यू जी। शाह साहब, आपसे बड़ी उम्मीद है कराची वालों को, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही हैं। नेस्ला टावर को गिरा दिया गया अदलिया के हुक्म पर, लेकिन सॉलिड वेस्ट का दफ्तर जहां मौजूद है वो एक पार्क है और उस पार्क में जो ये दफ्तर कायम हुआ है ये इंक्रोचमेंट है। इनके दफातर दीगर जगहों पे भी नहीं है जहां कंप्लेन की जा सके सॉलिड वेस्ट को। तो आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक सही नहीं करेंगे, कोई कंप्लेन सेंटर नहीं होगा, पता नहीं होगा लोगों को, तो बेहतरी कैसे आएगी? खास तौर पे इस पार्क के बारे में आप जी देखें, चेक कर लेते हैं। अगर कहीं पे इस तरह की बात होगी तो पार्क इसलिए नहीं है कि वहाँ पे ये दफातर हों। इनके दफातर हैं मुख्तलिफ जगह पे, बल्कि इनके तो बहुत सारे दफातर तो वो हैं जो इन्होंने किराए पे लिए हुए हैं। तो ये जो आप जिस जगह की निशान बता रहे हैं इसको चेक कर लेते हैं। बल्कि शिकायत के लिए तो इनके दफातर भी मौजूद हैं और इन्होंने एक ऐप भी बनाई हुई है और इनके कहता हूँ कि स्पेशली आपको वो दिखाएं ऐप और उसका तरीका भी समझाएं कि किस तरह शिकायत जो है वो दर्ज की जाती है, ताकि जहाँ जहाँ इस तरह की शिकायत हो उसका फौरी अजाला होना चाहिए। जो पार्क वाली बात है उसका अभी चेक कर लेते हैं और आपको बता दें। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का शेड्यूल भी हो चुका है, नॉमिनेशन पेपर कल से हो रहे हैं। इस हवाले से अब भी कुछ इबाम बरकरार है, कुछ अदालतों में भी मामलात हैं। क्या सूबाई हुकूमत पहले फेज के लिए तैयार है या कोई इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट कर रही है कि इसको डिले किया जाए? देखिए, हम तो शुरू से ही तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन को हमने पहले भी कहा था कि इलेक्शंस के लिए सिंध हुकूमत तैयार है, इसी वजह से ये अनाउंस हुए और दोनों फेज के लिए हमारी तैयारी पूरी है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो गई हैं कोर्ट्स में, डिलिमिटेशंस हैं, कुछ कवानीन हैं, उनके लिए कोई मसाइल हैं, तो उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। तो सबसे मिलकर कोई सही तरीक़ेकार ज़रूर निकल आएगा, लेकिन इलेक्शंस के लिए हम तैयार हैं और बिल्कुल होने चाहिए जल्दी। शाह साहब, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि सिंध में पानी की बहुत कमी है, पहले भी आपने बहुत एहतजाज किए हैं, क्या अब भी एहतजाज करेंगे? दूसरा मेरा सवाल ये है कि सब वज़ीर अब खुश हैं, क्या खुशी इमरान खान के जाने से या मुत्तहिदा से निकाह होने से? देखिए, पानी की किल्लत अपनी जगह पे बिल्कुल है और एहतजाज बिल्कुल जायज़ हक है, जमहूरी तरीके से हर जगह पे हम करेंगे। ये नहीं है कि हुकूमत चेंज हुई है वफाक की तो हम लोग अब चुप हो गए हैं, बल्कि आपके दोस्तों को ब्रीफिंग मिली होगी कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आए CM हाउस में, तो वहाँ पे भी हमारे इरिगेशन के मिनिस्टर ने और सब ने ये बात उठाई कि पानी की बहुत किल्लत है और अगर पानी कम है तो उसको मुनसिफाना तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। हम पूरे मुल्क के साथ हैं, अगर पानी कम आ रहा है तो हम भी उसमें चाहते हैं कि, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कटौती होती है तो मुनसिफाना हो और सबके साथ एक जैसी हो। तो इस पर हमारी बात उनके साथ हो रही है। और जो पानी अभी 2 दिन पहले 20 CM साहब सक्खर बैराज पर उन्होंने मीटिंग की और जो पावर के हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं खुर्शीद अहमद शाह साहब, वो भी वहाँ मौजूद थे, हम सब वहाँ पे थे। तो कुछ दिनों में बेहतरी ज़रूर होगी, लेकिन इस वक्त पानी की शॉर्टेज है। और बाकी जो बात आपने की है निकाह वाली, वो मैं आपको अलहदा से बता देता हूँ। बहुत शुक्रिया।